Hello students. So students, in the last part of the video, we have started a new chapter, that is chapter number 6, triangles. Okay. So student, in the previous part of this chapter, I told you what is similar figure. Okay. What are the criteria of similar polygons and what are the criteria of similar triangles. Okay. And in that part I told you that two polygons or two triangles will be similar when first point was there, their corresponding angles are equal, and the second point is that the ratio of their corresponding sides are in the same ratio, same proportion. Okay, so means whenever two triangles will be similar, there will always be two things. First thing is that their corresponding angles are equal, and the second thing is that the ratio of their corresponding sides are also equal. Okay, so for understand the concept of similarity of triangles, we will move forward, and the next topic of this chapter will be basic proportionality theorem. Okay, basic proportionality theorem, which is also known as Thales theorem. Okay, so student, for your board examination this theorem is most important, and I can give you guarantee that this question will come in your board examination of 4 marks. ठीक है, ये आएगा ही आएगा. ठीक है, या तो ये आएगा या इसका कॉन्वर्स आएगा. These type of question always comes. These are the selected question which is always coming in the exam. Okay, so this is the most important topic and this often comes in the board examination. Okay, और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा इसका यूज है, पूरे चैप्टर में इसका यूज है. अगर आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आएगा then you cannot able to find the solution of the given question. Okay, so this is the first main important topic of this chapter. Okay, so what is basic proportionality theorem? Students, the basic proportionality theorem is also known as Thales theorem. Okay, this theorem is also known as Thales theorem. Okay, so what is that basic proportionality theorem? Means what is the statement of this theorem? So the statement of this theorem is that, मतलब कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेटमेंट लिख कर आएगा और आपको पहचानना है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है या नहीं. स्टेटमेंट लिखा होगा, अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप पहचान जाओगे कि ये थेल्स थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, सो द स्टेटमेंट इज, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in the distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay, one more time I am going to repeat this statement. If a line drawn parallel to one side of a triangle, okay, there will be a triangle and you have to draw a line which is parallel to one side of the triangle. Okay, so you can draw any parallel line to the one side of the triangle, and whenever you draw that parallel line intersect the other two remaining sides at distinct point. Okay, so the other two sides are divided in the same ratio. तो उसको समझें कैसे. For example, suppose I am going to draw the diagram of this statement. Suppose I am having a triangle like this. ठीक है, suppose this is the triangle ABC. Okay, and what this question is saying, if a line drawn parallel to one side of the triangle, so what I am going to do, I am drawing a line which is parallel to any one side of the triangle. Any one side, किसी के भी पैरेलल हो सकती है, या वो AB के पैरेलल हो या BC के पैरेलल हो या AC के पैरेलल हो. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. सपोज आई हैव ड्रॉन अ लाइन लाइक दिस. ठीक है, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया स्टूडेंट, दैट लाइन डिवाइड द अदर टू साइड एट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. इस वाली साइड को सपोज D पे कट किया और इस वाली साइड को सपोज E पे कट किया. तो जब ये दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में इन दोनों साइड्स के जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम. मींस वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB will be equal to AE upon EC. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं. When a line drawn parallel to any one side of the triangle, any one side, so what I have done, I have drawn a triangle and I have drawn a line which is parallel to BC. Okay,
So whenever we will draw a line parallel to BC, that line will intersect the other two sides of the triangle at distinct point. So the other two sides are divided in the same ratio, means the ratio of this to this will be equal to the ratio of this to this. Okay, the ratio, because this line is divided into AD and DB parts, so the ratio of AD and DB will be equal to the ratio of AE and EC. Okay, so this is known as the Thales theorem. So suppose this is the figure, student, this will be the figure. So suppose what we will do, we will write in the given part, triangle ABC in which DE पैरेलल BC, ठीक है। ये DE एक लाइन है, लाइन दो इधर भी होगी, लेकिन DE एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, BC के, मतलब कि इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, ये गिवन है, यही तो दिया है। If a line drawn parallel to one side of the triangle, so DE is parallel to BC. So what we have to prove that? We have to prove that the ratio of two sides, the ratio of the other two sides are divided in the same ratio. Other two side, कौन सी साइड बच गई थी जब DE को हमने BC के पैरेलल ड्रॉ किया, तो कौन सी साइड बची थी, AB और AC। और जब आप ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे BC के, तो ये लाइन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज D and E। ओके, तो ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में आपस में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब AD अपॉन DB विल बी इक्वल इनटू AE अपॉन AC। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, DE is a line which is parallel to BC to intersect the other two side in distinct point। जब आपने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये DE, ये लाइन AB और AC को अलग अलग पॉइंट पे कट की, उसके अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। अदर टू साइड कौन सी थी, AB और AC, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दैट इज AD अपॉन DB एंड AE अपॉन AC। तो इन दोनों पार्ट का वही रेशियो होगा जो इन दोनों पार्ट का होगा। ठीक है, यही हमारा थेल्स थ्योरम है। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो लाइन ड्रॉ की गई है वो ट्रायंगल की एक साइड के क्या हो, पैरेलल, और वो लाइन अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। अगर कट करेगी तो दोनों साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दोनों साइड के जो पार्ट्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, सेम। सो वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, दिस इज द गिवन पार्ट and this we have to prove. Okay, now for proving this we need to do some construction. Okay, so what we will do, student, we will draw a perpendicular from E to this AB. So one perpendicular will come like this, ठीक है, and the second perpendicular will come like this। क्या किया हम लोगों ने, E से, E वाला पॉइंट है, E से इस AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि क्या है, F EF, और D से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज DG। ठीक है, और क्या किया, इसको हमने डॉटेड ड्रॉ कर दिया। ओके, D को C से ज्वाइन कर दिया एंड B को E से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, वी ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू AB एंड D टू AC। E से जो AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो EG है, और D से जो AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो DG है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इन कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC। मतलब कि दोनों साइड पर हम लोग इस D और अलग अलग पॉइंट जो मिले हैं हमको दोनों ट्रायंगल पे, तो इस D वाले से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और E वाले से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड ज्वाइन
ज्वाइन डीसी डीसी एंड बीई, ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। कोई भी प्रूविंग आए तो पहले आप गिवन लिखो, फिर लिखो क्या प्रूव करना है, देन यू राइट वट एवर थिंग इज नीडेड टू prove the following statement. Okay, so this we have done. Okay, now student, see what will be the proof of this question. Proof. Okay, proof. So proof, for proving I am going to erase this statement, student, because I hope that you have written this statement, because it is taking too much space. That's why I am going to erase it. Pause the video, note down it, then write the next thing. Okay, so I am going to erase this statement, okay, because I need space to prove it. Okay, so I am going to erase these written parts. Now we have so much space so that we can prove it. Okay, now we will write proof. Okay, proof. Now proof is what, student? Take triangle, in triangle ADE, in triangle ADE. What is triangle ADE, student? See, ADE, ठीक है, ADE. अच्छा, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं ADE का, so ADE is like that, ADE is like that, ठीक है। और हमने क्या किया है, E से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। पहले एक परपेंडिकुलर को एज्यूम करो, तो यहाँ पे क्या है F, ठीक है, और ये वाला भी परपेंडिकुलर है, तो अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पहले इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ADE है दिख रहा है ये, तो इस ADE में स्टूडेंट व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर विल बी द EF, परपेंडिकुलर विल बी EF, एंड व्हाट विल बी द बेस? बेस विल बी AD। इट इज क्लियर और नॉट? इस डायग्राम में जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन AD, so AD will be base and perpendicular will be EF. So we can calculate the area of triangle ADE. What will be the area of triangle ADE, student? The area of the triangle is half into base into height. The area of triangle is half into base into height, ठीक है। So we can write now area of triangle ADE is equal to half into, for this EF will be base, अगर हम सॉरी AD will be base, अगर बेस AD लोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा? EF, ठीक है। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is calculated as 1/2 into AD into EF. So suppose this is equation number 1. पहले आप एक साइड के ट्रायंगल लेना है, फिर दूसरे साइड के ट्रायंगल लेना, अभी समझ में आएगा सब, ठीक है, बस देखते जाओ। सिमिलरली अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट? अब ट्रायंगल लेंगे हम लोग ये वाला DBE, ठीक है, DBE। तो इसका अगर मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करूं तो DBE विल बी लाइक दैट, ठीक है। वेट अ मिनट, DBE will be like that, okay, and perpendicular of DBE is like that, ठीक है। It is DBE and it is F, ठीक है। अब ध्यान दो स्टूडेंट, अगर मैं ट्रायंगल DBE ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल DBE, तो अगर आप DBE को देख रहे हो तो DBE एक तरह का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। DBE को अगर अच्छे से ड्रॉ करोगे स्टूडेंट, देखो इसको मैं सीधा ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। E जो D वाला एंगल है जैसे ऐसे है, ठीक है, लाइक दिस, इट इज E, ये वाला पॉइंट E, ये वाला पॉइंट D और ये वाला पॉइंट C, ठीक है, और यहां पे कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दैट इज EF, इस ट्रायंगल के बाहर, ओके। DBE और EBD, चाहे EDB बोलो चाहे DBE बोलो, वो दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग EDB एक ट्रायंगल लेते हैं, EDB, तो इस ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं बेस पर, वो हमेशा उसके बाहर आता है। अब देखो ध्यान से, EDB इज अ ट्रायंगल, और इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है? EF, क्या है? EF, ओके।
EF इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि देखो ये एंगल D जो है देख के लग रहा है कि ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं वो ट्रायंगल के बाहर आता है। बेस तो आप काउंट करोगे DB को ही, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा EF, ठीक है। सो इट इज अ ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल दैट इज EDB, और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ऑब्टूज एंगल की साइड में वो बाहर होता है। तो देखो बाहर क्या है EF, तो इस केस में अगर एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो देखो इसी बेस को ना आगे बढ़ाया गया होगा, इसी बेस को आगे एक्सटेंड करने पे यहां तक जाएगा, तो बेस तो हम लोग DB ही लेंगे लेकिन परपेंडिकुलर क्या लेंगे EF। सो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। समझना, अगर कोई ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल ऐसे है और आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो हमेशा बाहर ही आता है। तो देखो इस ट्रायंगल के बाहर ही तो ये परपेंडिकुलर EF है, तो बेस तो हमारा क्या होगा, बेस हमारा DB ही होगा लेकिन परपेंडिकुलर हम लोग EF लेंगे, ठीक है। सो फॉर सॉल्विंग इट वी कैन राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE विल बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस विल बी व्हाट DB and perpendicular will be EF, that is equation number 2, ठीक है। what you do students, equation number 1 divide equation number 2, equation number 1 को equation number 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट के साथ डिवाइड होगा, राइट वाला पार्ट राइट के साथ डिवाइड होगा, ओके। सो व्हाट विल कम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE will be equal to, see, half into AD into EF and this side half into DB into EF, okay. Now half will be cancelled, EF will be cancelled, so what will be left, AD by DB, ठीक है। Suppose this is equation number 3, ठीक है। This is equation number 3. So first you note down what we have done. For EF perpendicular, we have calculated the area of triangle ADE and area of triangle DBE. ठीक है, ADE और DBE में दोनों का ही परपेंडिकुलर EF ही होगा, बस बेस अलग अलग है क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग है। इस ट्रायंगल में बेस AD था और इस ट्रायंगल में बेस DB था, और फॉर्मूला लगाया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का अलग अलग इक्वेशन मिल गया, दोनों को डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD बाई DB, ये मिला। सो फर्स्ट यू नोट डाउन इट, ओके। और here I can also write area of triangle ADE divide by area of triangle DBE equal to AD by DB, ठीक है। This is our equation number 3, ठीक है। इसी को यहां लिखा है मैंने। So first you note down it student. Now student, same thing we will do for the other cases also, okay. So first you note down it, then we will do, I hope up to this point, up to equation number 3 you have noted down, okay. Now again student, when we will solve up to equation number 3, again we will take triangle in triangle ADE, ठीक है। अब देखो ADE फिर से मैंने लिया, लेकिन अब मैं कौन सा परपेंडिकुलर ले रहा हूं, DG। पहले वाले केस में EF लिया था, अब मैं ले रहा हूं DG। तो अगर DG परपेंडिकुलर लूंगा तो फिर इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा AE, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस साइड पे होता है वही हमारा बेस होता है। पहले वाले केस में हमने EF परपेंडिकुलर लिया था तो बेस हमारा AD आया था। अब क्या ले रहे हैं, DG परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या आएगा AE। तो फिर से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैलकुलेट करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट अब मैं परपेंडिकुलर को DG दे रहा हूं, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस विल बी AE
and perpendicular will be DG. Suppose this is equation number 4 because earlier was equation number 3. Similarly, just अब पहले हम लोगों ने इधर DBE निकाला था ना, अब क्या निकालेंगे DCE, and DCE is again a obtuse angle triangle. जैसे कि EDB था obtuse angle triangle, जैसे कि DBE एक obtuse angle triangle था, वैसे ही DEC भी एक obtuse angle triangle होगा इस पॉइंट पे, और इस ट्रायंगल के लिए भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है वो बाहर ही हो रहा है, दैट इज DG. सो अगेन वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. ठीक है, अर्जित बारे में DBE कैलकुलेट किए थे, अब क्या कर रहे हैं DCE. So area of triangle DEC is again can be written as half into base into height. Now area of triangle DEC is equal to half into. Now for this triangle, this is the obtuse angle triangle, perpendicular will be DG. So for this triangle what will be the base? Base will be EC only. जैसे कि यहाँ पे DB बेस था, वैसे यहाँ पे EC, क्योंकि इसी EC को आगे बढ़ाया गया होगा तो यहाँ पे ये इससे आके मिला होगा, तो बेस हमारा EC होगा लेकिन परपेंडिकुलर DG ही होगा. सो बेस विल बी EC and perpendicular will be DG. So this will be equation number 5. Now again do the same thing जो आपने पहले में किया था. Equation number 4 divide by equation number 5. So when you will do that, equation number 4 is area of triangle ADE divided by area of triangle DEC is equal to 1 by 2 into AE into DG and divided by 1 by 2 into EC into DG. ठीक है, now 1 by 2 DG will cancel, so what will come? AE upon EC. ठीक है, so area of triangle ADE divided by area of triangle DEC is equal to AE upon EC. This is equation number 6. ठीक है, अब हो गया, अब सारा काम हो गया हम लोगों का. ठीक है, सो नोटेड डाउन स्टूडेंट. फर्स्ट और 2 को डिवाइड किए तो 3rd मिला था, 4th और 5th को डिवाइड किए तो 6 मिला. ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, पॉज द वीडियो देन नोट इट डाउन. नाउ you have to remember, keep in mind that equation number 3 and equation number 6. ठीक है, now students see, दो ट्रायंगल हमने लिया था DBE और DCE. ठीक है, अब ध्यान दो, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE are on the same base DE and between same parallels DE and BC. अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल DBE इसका बेस भी DE है, ट्रायंगल DCE इसका बेस भी DE है, और दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है. तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था triangles which are on the same base and between the same parallels having equal area. So we can say that area of triangle DBE will be equal to area of triangle DCE. ठीक है, area of triangle DBE will be equal to area of triangle DCE. Why? Because DBE and DCE are on the same base, that is DE, and between the same parallel DE and BC. So in that case the area of both the triangle will be equal, so we can write area of triangle DBE will be equal to area of triangle DCE. So from equation number 6 student, from equation number 6 was area of triangle ADE divided by area of triangle DCE
इज इक्वल टू AE बाई AC ना, AE बाई EC. So in place of area of triangle DCE, in place of area of triangle DCE, we can write area of triangle DBE. So area of triangle ADE and area of, in place of area of triangle DCE क्या क्या ले सकते हैं, area of triangle DBE will be equal to AE by EC. This is equation number 7. ठीक है, बस काम खत्म हो गया हम लोग का. अब ध्यान दो आप स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 क्या था स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर 3 अगर आपने लिखा होगा, so equation number 3 was see area of triangle ADE, area of triangle, equation number 3 was area of triangle ADE divided by area of triangle DBE equal to AD by DB. This was the equation number 3. This was the equation number 3 and this is the equation number 7. तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. देखो इक्वेशन नंबर 3 में भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, और इक्वेशन नंबर 7 में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB. सो व्हाट वी विल राइट स्टूडेंट, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7, जब कंपेयर करोगे तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 विल बी व्हाट वी कैन राइट, AD बाई DB will be equal to AE by EC. दोनों इक्वेशन में ये दो पार्ट आपस में इक्वल है ना, तो अगर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. सो वी कैन से AD by DB will be equal to AE by AC, AE by EC. So that's proved. Okay, so this is the proof of basic proportionality theorem. Okay, सुनो करना क्या है, पहले ट्रायंगल लो, एक लाइन ड्रॉ करो BC के पैरेलल. जब लाइन ड्रॉ करोगे तो वो अदर टू साइड को D और E पॉइंट पे अलग अलग कट करेगी. तो हम लोग को ये प्रूव करना था कि दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि जो रेशियो AD बाई DB का होगा वही रेशियो AE बाई EC का होगा. ठीक है, D was parallel to BC, so AD by DB will be equal to, मतलब कि इन दोनों पार्ट्स का वही रेशियो होगा जो AE और EC का होगा. ठीक है, किए क्या, पहले इस पॉइंट से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए EF, और D से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए DG, और D को C से ज्वाइन कर दिए, B को E से ज्वाइन कर दिए. फिर क्या किए, पहले केस में ट्रायंगल ADE लिए, पहले हम लोग एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहे हैं दैट इज EF. सो फॉर EF इन दिस ट्रायंगल ADE बेस विल बी AD. So area of triangle ADE can be calculated by the formula half into base into height. So base is AD and perpendicular is EF. So the area of ADE will be half into AD into EF. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DBE, बस यही वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल DBE. ट्रायंगल DBE ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल से बाहर बनता है. बेस तो हमारा DBE होगा लेकिन परपेंडिकुलर EF होगा. तो हमने ट्रायंगल DBE का एरिया निकाल लिया, तो क्या आया, हाफ इनटू बेस विल बी DB एंड परपेंडिकुलर विल बी EF. सो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड किया तो थर्ड इक्वेशन मिला, दैट इज, ठीक है, ये वाला इक्वेशन मिला था. उसके बाद फिर से क्या किए, ट्रायंगल ADE लिए. अब क्या किए, अब DG को परपेंडिकुलर माने, तो जब DG परपेंडिकुलर लोगे तो बेस AE होगा. तो उस केस में हम लोग क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लिए, तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू AE इंटू DG. फिर से हम लोग जैसे DBE निकाले थे वैसे ही DCE निकाल लिए, ये भी एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो इसमें भी परपेंडिकुलर बाहर मिलेगा, दैट इज DG, और बेस तो EC ही होगा. तो इसका जब निकाले तो हाफ इंटू EC इंटू DG आया. फिर 4 और 5 को डिवाइड किए तो हमको 6 मिला, 4 और 5 को डिवाइड किए तो हमें 6 मिला. उसके बाद हमने क्या देखा कि ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DCE का बेस सेम है और वो दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों का एरिया सेम होगा. तो हमने ये लिख लिया. और इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर 6 हमारा ये था, इसमें DCE की जगह क्या पुट कर दिया, DBE. तो जो मिला वो हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया. अब थर्ड और सेकंड को कंपेयर किए
कंपेयर करने पर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, सो दैट AD by DB is equal to AE by EC. Okay, this is the proof of basic proportionality theorem, that is Thales theorem. बस आपको ये देखना है कि लाइन किस साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है, उसके बाद तो आप रेशियो लिख ही सकते हो. ठीक है, so I hope it is clear to you. Now note it down. Now student, we have studied basic proportionality theorem, that is Thales theorem. क्या था Thales theorem? कि अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है. तो जैसे ही कट करेगी वो दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे. मतलब कि जो रेशियो AD by DB का होगा वही रेशियो AE by EC का होगा. ठीक है, अब लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा BC के ही पैरेलल हो. मान लो कोई ट्रायंगल है आपके पास ऐसा, ठीक है, ABC फॉर एग्जांपल ABC. ठीक है, और मैंने ड्रॉ किया है किसके पैरेलल, AC के पैरेलल, ऐसे ड्रॉ किया है. ठीक है, सपोज ये D है और ये E है. यहाँ पे क्या है, DE इज पैरेलल टू AC. सो बाय थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बाय थेल्स थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो अदर टू साइड विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मींस द रेशियो ऑफ BD और DC विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ BE in and EA. So we can write BD upon DC is equal to BE upon BA EA. ठीक है, BE upon EA. बस आपको देखना है कि किसके पैरेलल ड्रॉ की गई है. जिसके पैरेलल ड्रॉ की गई होगी तो दो साइड बच जाएगी. ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की गई थी तो BC और AB को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो ये दो साइड का जो रेशियो होगा वही, ये दो पार्ट्स का जो रेशियो होगा वही इन दोनों पार्ट्स का होगा. और रेशियो लिखते कैसे हैं, अगर आप लोग BD अपॉन DC लिख रहे हो तो इसमें भी लिखोगे BE अपॉन EA. ओके, सेम तरह लिखते हैं. अगर आप BD अपॉन DC लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, BE अपॉन AE. इन दोनों का रेशियो बराबर होगा. ऐसे ही अगर एक ट्रायंगल है ABC, अब यहां पे मैंने किसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, AB के पैरेलल. ऐसे ये D है और ये E है. तो अगेन में वी कैन अप्लाई थेल्स थ्योरम. सो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम. अब देखो अब किसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, यहां पे ड्रॉ किया गया है D इज पैरेलल टू AB. तो अगर आपको लिखना हो थेल्स थ्योरम के हिसाब से तो क्या लिखोगे, CD अपॉन DA. मतलब कि CD और DA का जो रेशियो होगा वही रेशियो CE और EB का होगा. मतलब CD अपॉन DA विल बी इक्वल टू CE अपॉन EB. ठीक है, ये दो पार्ट्स का रेशियो और ये दो पार्ट्स का रेशियो. जो पैटर्न आप इसमें एक साइड में फॉलो कर रहे हो वही पैटर्न दूसरे साइड में भी फॉलो करोगे. अगर आपने पैटर्न चेंज कर दिया, मान लो आप AD अपॉन DC लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, BE अपॉन EC. ठीक है, तो जैसा पैटर्न एक साइड में फॉलो कर रहे हो रेशियो का वही पैटर्न दूसरे साइड में भी फॉलो करना है. एक के पैरेलल होगी तो दोनों साइड को अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेगी और दोनों का रेशियो सेम होगा. मतलब कि CD by DA विल बी इक्वल टू CE by BE. ठीक है, तो ये है. अब देखो इसी से कुछ रिजल्ट मिलता है. इसी से क्या रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट, हम लोग को और भी कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं हम लोगों को. सी सपोज इट इज अ ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, DE is parallel to BC. So by Thales theorem, what we can write, student, AD by DB is equal to AE by EC. ठीक है, now क्या करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो. ठीक है, add 1 both side, adding 1 both sides. तो क्या आ जाएगा, AD by DB plus 1 equal to AE by EC plus 1. Okay, now we can take LCM. तो इस साइड का जो LCM आएगा that will be DB, क्योंकि 1 को हम लोग 1 upon 1 ले सकते हैं. So it will be AD plus DB and it will be AE plus EC upon EC. ठीक है, now AD plus DB will become AB
will become AB, AD plus DB will become AB by DB, and AE plus EC will become AC by EC. So यहाँ से एक और रिजल्ट मिल गया. Okay, so from here we can get one more result, that is AB upon AD will be equal to AC upon EC. मतलब कि पूरा पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट विल बी इक्वल टू पूरा पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट. ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी कर दो तो चलेगा. इसको ऐसे लिख सकते हो ना, DB बाई AB विल बी इक्वल टू EC बाई AC. ये भी हो सकता है. अच्छा, जैसे हमने लिखा है AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC, वैसे ही आप लिख सकते हो. ऐसे ही सिमिलरली वी कैन राइट AB बाई AD, मतलब कि पूरा वाला पार्ट डिवाइड बाय दिस पार्ट विल बी आल्सो बी इक्वल टू AC बाई AE. तो ये भी वैसे ही आएगा जैसे मैंने 1 ऐड करके किया है. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही आएगा स्टूडेंट जैसे मैंने 1 ऐड करके किया है. इसको आप अच्छा, ये वाला प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप, ये वाला जैसे ये प्रूव किया है मैंने, वैसे ही ये भी प्रूव करना है. तो इसके लिए चाहिए क्या, हमको AD नीचे चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर ही देता हूं प्रूव. ठीक है, मान लो ये तो मैंने प्रूव कर दिया. ठीक है, फिर से हम सेम चीज जाएंगे. मान लो फिर से थेल्स थ्योरम से जाएंगे. बाय थेल्स थ्योरम हम जानते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. ठीक है, ये तो पता है, ये तो बेसिक होता है. तो फिर से क्या करो, इसका पहले रेसिप्रोकल कर दो. तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो DB बाई AD विल बी इक्वल टू EC बाई AE आएगा. ठीक है, अब क्या करो, अब ऐड कर दो वन मोर बोथ साइड. ऐड वन बोथ साइड्स. ठीक है, सो DB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1. तो अब इसमें भी एलसीएम ले लो. तो एलसीएम लोगे तो AD आएगा, तो AD और ऊपर आ जाएगा DB प्लस AD. ठीक है, सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, EC प्लस AE अपॉन AE. मैंने एलसीएम ले लिया है दोनों साइड, जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में किया है. इस वाले केस में अब देखो DB और AD मिलके क्या हो जाएंगे, AB. सो AB बाई AD इधर आ जाएगा, एंड EC और AE मिलके क्या हो जाएंगे, AC. सो AC बाई AE. ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं. ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन मैंने दोनों को बता दिया. मतलब कि पूरा पार्ट डिवाइड बाई अपर पार्ट इज आल्सो इक्वल टू फुल पार्ट डिवाइड बाई अपर पार्ट, और पूरा पार्ट डिवाइड बाई लोअर पार्ट इज इक्वल टू पूरा पार्ट डिवाइड बाई लोअर पार्ट. जैसे कि पहले वाला केस क्या था, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये भी इक्वल होगा. और AB बाई AD इज आल्सो इक्वल टू AC बाई AE. तो मतलब कि बेसिक थेल्स थ्योरम से हमने 3 रिजल्ट पा लिया. पहला वाला ये, मतलब पहला तो ये था हमारा, दूसरा ये था, एंड थर्ड वन इज दिस. अगर आपको इन तीनों में से बेसिक पता है तो आप तीनों निकाल लोगे ऐड 1 करके. ठीक है, एक केस में रेसिप्रोकल करना और एक केस में डायरेक्टली ऐड 1 कर देना है. ठीक है, तो ये बेसिक रूल हुए आपके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के. एक बार इसको अच्छे से फिर से देखना, समझ में आ जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and it always comes of 4 marks in the board examination. Okay, so the question based on the basic proportionality theorem we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.